welcome to this special broadcast as we are continuing our special series, India at 78, through the eyes of the icons. And we have a sporting icon with us. She's all of 22, but she has achieved quite a lot. She's the one who opened India's account at Paris Olympics. She ended 12 years of wait of India for a shooting Olympic medal, and then she went on to win another bronze. Manu Bhaker needs no introduction. You have got us, you gave us several reasons to cheer, and Jaspal Rana ji, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. मन्नू, इतना सारा जो अचीवमेंट है छोटी सी मन्नू पे बड़ा भारी सा है. आई थिंक मेरे करियर को तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 8.5 years इन शूटिंग. और टोक्यो में भी आई वाज देयर, और उसके बाद पेरिस में आई थिंक वी ट्रेंड इन अ मैनर कि मेडल के लिए वी वर होपिंग. सो आई थिंक वी प्लान इन अ वे कि थिंग्स टर्न आउट टू बी गुड, एंड सो इट वर्कड इन अ फेवर, बट इट्स नॉट सो बिग ऑन माई shoulders. So it's easy, huh? I'm not saying it's easy either. I'm just saying, I mean, it's neither easy nor very difficult. So it's like sometimes manageable, sometimes I have to struggle to manage. Oh, very nice. So, but the list of the achievements, in the sense that there's a 12-year drought that we have now been able to finish. Mm-hmm. You were the first woman to win a shooting medal for India. Mm-hmm. And you did it. I mean, you also hold another medal in this round. It's quite significant. Do you think that this is inspiring, or do you think that more work can be done to better it? You are very young still, and do you think that other sports persons, particularly girls, can take some sort of a inspiration from your achievements? I think any achievement will give you inspiration also. But at the same time, we can't be like, okay, this is enough. We definitely have a lot of huge scope to work forward also. And I think India has a huge amount of talent, and a lot of people are very, very, very talented. I think it's just the time that we nurture them. And I think we can have great athletes. It'll take some time, but I think we can have great athletes in some time. I think my medals would also inspire me also, and I'm so happy that it inspires so many other young people and young girls in particular, if you talk about. I feel like parents would be much more flexible with the girls, and especially shooting would be people would accept shooting more after this celebration. And I think, we can always drive inspiration from a medal, but there's always a long way to go. We can always do better. जसपाल राणा जी, हिंदुस्तान का इतना लंबा सफ़र रहा है, आपने बहुत सारे शूटर्स को ट्रेन किया है, वो आपका भी अपना जर्नी रहा है. पहले के जो होते थे एथलीट्स और अब के जो होते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप? क्या एटीट्यूड में फ़र्क है? हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट. देखिए, एटीट्यूड तो हर बारी एक ही होता है. जब हर खिलाड़ी जाता है, सेलेक्ट होकर जाता है, तो जज्बा अगर जीतने का ना हो तो फिर उसमें पार्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, अगर आप इस टाइम का ओलंपिक का रिजल्ट भी देखोगे, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन 4th and 3rd. मनु लॉस्ट 1 medal, 3rd medal विद द सेम स्कोर. तो टैलेंट की कमी नहीं है, एटीट्यूड पहले भी वही था, अभी भी है. हाँ, अब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर थिंग्स वो ज़्यादा है. हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, इनसे फ़ोन लेना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आज के जो जनरेशन है, दे आर टोटली डिफरेंट लेवल. आपको अगर टॉप में रहना, देन यू हैव टू फाइट एवरी सिंगल डे. मैं मनु के लिए बोल रहा हूँ, अगर 3 महीने भी रेस्ट में जा रही है, लेकिन रेस्ट के बाद अगर हम 200% दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे तो LA विल नॉट बी पॉसिबल. To make that possible, we have to leave everything as soon as possible once you come back from the break, and then let's see what is there for us in LA. At 22 years, Manu, there's no sense of time, so it's very difficult for us to ask her about Independence Day, the history. I mean, at 22, nobody has a concept of history. But what do you think? We will turn 78 as a country.
and Independence Day is a very important day for all of us. Do you think it has a special place in your mind and your heart? I would say that India is a country of fighters, and we have been fighting for many years now. And I think Independence Day is celebrated like the biggest fight that we won in the history of independence. And I think there it began. I mean, earlier also it was very persistent, but there it all began, that the journey of fighting. After that, we have fought with so many other things in our lives that came as huge challenges. And from independence, I feel like the place where I live, like the country, I really love my country. And I think everything that I would love, I mean, I have everything. I have everything that I need. So that is independence for me. And then when you go to like academical terms, and yeah, the freedom to talk, speech, and the rights and everything, I think India is a very liberal country and we have come a long way. But we are the country of fighters and we need to continue the fight in You are a order trail to blazer improve. yourself. So जब तिरंगा लेकर के खड़े होते हैं कैसा लगता है? और पोडियम पर भी हैं. I would say there's no better feeling being an athlete. So for me personally, there's no better feeling than having the tiranga around the shoulders. And I think one better feeling would be like the national anthem, when the national anthem plays and everyone is standing in the honor of your country's national anthem, and the flag goes higher than everyone else. So I think that is the greatest feeling, being an athlete for me personally. And I feel like many Indians would connect with it, and many aspiring athletes would too. Flag goes higher. Yeah, flag goes higher. Flag goes Jaspal Rana ji, Olympics as a tournament is very tough. And लेकिन इंडिया का जो प्रेपरेशन है वो भी बहुत बेहतर हुआ है इतने सालों में. जी. तो आपको लगता है हम लोगों की तैयारी अब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट होता है स्पोर्ट्स में वो भी ज्यादा है, और जो एटीट्यूड है जो आप बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी ये किलर स्पिरिट है. जी. और आपको क्या फर्क दिखता है इतने सालों के आपके करियर में, जो कि लंबा करियर है ऑफ कोर्स, मन्नू सर? देखिए, फ़र्क तो हर जनरेशन में चेंज होता चला जाता है. और आप बात कर रहे हैं जैसे हम जो अचीव कर पा रहे हैं उसमें फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ चेंज हो रही हैं. ये कंट्री पहले स्पोर्टिंग नेशन नहीं था, अब वो धीरे धीरे स्पोर्टिंग की तरफ जा रहा है. चाहे आप खेलो इंडिया ले लो, जूनियर प्रोग्राम्स ले लो, हर जैसे प्रधानमंत्री जी ने मन्नू को मतलब सबसे पहले फ़ोन करके इसको बधाई दी और उनको सारी डिटेल पता थी. तो एक खिलाड़ी के लिए उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता कि मतलब देश का जो सबसे बड़ा है वो आपको फ़ोन करके बधाई दे रहा है, और उससे जो मोटिवेशन मिलता है क्योंकि इसके हर रोज़ एक मैच थे और हर रोज़ एक फाइनल था, तो ऑब्वियसली दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड अब जो जनरेशन है, मैं जैसे बोला कि दे आर better software, but there are a lot of virus also which need to be protected. And सबसे बड़ी बात मैं जो बोलना चाहता हूँ, we need to protect these talent. आप हर ओलंपिक में देखेंगे 60-70% लोग गायब हो जाते हैं. It could be government policy, it could be the facilities, it could be they could not perform, it could be that they have a like lean period of their performance. We need to protect these talent and you will see miracles happening. Look at the China, look at America. उनके players को आप 10-10 साल, 20-20 साल. There's a one shooter, Nino. Oh, this was her 10th Olympic Games. For 10th Olympic Games, 40 years of continuously. shooting. Yeah, Yes. and 65. 65? 65? Yeah. Oh, 15 साल 40 में. years of Fantastic. shooting. 40 So- years of shooting. जब तक हम वो चीज़ को नहीं करेंगे अपने देश में, तब तक एज इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए. टैलेंट मरता नहीं है. We just need to protect that. That's all. टैलेंट प्रोटेक्शन एक बड़ी बात है जसपाल राणा जी. एक बात मुझे एक और बात बताइए, ये मेरे दिमाग में काफी दिनों से अभी आ रहा है जब मैं इस समय परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ. आपने कहा कि 3rd-4th नंबर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये हमारा जो हम 4th से 3rd खासकर, क्योंकि 4th नॉन मेडल है, 3rd से 2nd और 2nd से 1st को कैटापुल्ट करने में हमारे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है. बिल्कुल आती है, बिकॉज अगर आप Issue. मन्नू का एग्जांपल लें, हम्म. she was nowhere from after Tokyo Olympic. There was no system that we could have protected her. वो तो एक साल में जो हमने चाहे किसी से भी जो भी लड़ाई लड़ी, I will not name it because the end is good is everything is good. Exactly. So we got the result. But where is the system?
why should I be the savior? There should be a system to protect her, to protect Saurav Chaudhary, to protect Jitu Rai. Where are they? Why don't we talk about them? थोड़ा हॉस्टिलिटी है. So you need मतलब to just सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करने की Improve जरूरत है, करने ये जो की- तीसरे से दूसरे पे लाने के लिए, और क्योंकि मेडल तालिका में आना अल्टीमेटली इज इम्पोर्टेंट. सर फाइनल मानना अपने आप में बहुत बड़ी बात. हाँ, और मेडल तालिका में आना, मेडल टैली में आना अपने आप में ऑब्वियसली There's इज द एम. there's no difference. Manu was second till the second last shot in the third match. It's just that one shot. So it can happen. The day they will decide that. But उस डे के डिसाइड करने के लिए आपको फाइनल में उस जगह पे आना तो पड़ेगा. और बच्चे आ रहे हैं. हम्म. Just give them little longer chance to prove themselves. करियर बढ़ाना चाहिए. बिल्कुल. और पीटी उषा हेड कर रही हैं तो एक अनदर इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि उस जनरेशन में बहुत ही कम महिलाएं हैं, महिला खिलाड़ी हैं. She is the only one who made this possible. Yes. This team possible. I was not For there. the I was Olympic not Games. supposed to be there. She put her foot forward and she said nothing. Manu has asked I and once met her in an event, and I had this request that I really will need my coach to be with me in the Olympic Games, and I really need your support for that. So that time she assured me, she was like, you don't need to worry. If you really need him, he will be there. You just focus on your training and just relax and just do your best, work hard. And she made sure that everything was in place. So खिलाड़ियों it was में possible बहुत because of her. एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेंस भी होगा ज्यादा, कि देश का पूरा भार है और इतने सारे एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस का भार है. And I PT think, has provided you what you wanted. Yes. Huh? I think having a person who was actually who was also legend. Sports Legend. person, legend. who was a celebrated athlete in 80s 90s, I would say that it's a sense of honor, and it is a sense of responsibility, as you said, that okay, to carry on the legacy. Or I mean, she is much more accomplished than I am, but I mean, I have that something, I have her to look forward to. I mean, her journey has been great, and she has had so many things to overcome, the challenges and everything. It was so tough back in the days, and she still managed to overcome all of that and win medals for the country. So I mean, अगर examples वैसे हैं तो I mean, हमारे लिए easy होता है कि we should look up to them and their journeys and try to follow in their footsteps. So we will not take much of your time because everyone's waiting. You are tight on time. Manu's message to the young girls of this country. Okay, so young girls or young kids, I would say that hard work never goes in vain. Hard work will always pay off. Just have some patience, and you will be there. I mean, success, you will get success, but you have to be patient, and you have to put hard work honestly. You can't be cheating. I mean, there's no shortcut in hard work. You can't take shortcuts to success. It'll take long time, but you have to be consistent. You have to be persistent, and you will be there. So this message of hard work is perhaps almost like a running theme among all the icons, irrespective of their age. Yes. Hard work, practice, Persistence, and honesty. All right. With that, it's a wrap from me. Congratulations, मुबारक हो, बधाई, हर तरह से बोल सकते हैं हम आपको. और राणा जी, thank you so much. Continue to inspire her and many like her. Thanks so much for watching. Thank you. Whatever it may be, one sport that will always embody the spirit of India will remain its national sport, the hockey. And me and Maria today are joined by the heroes of Indian hockey who have just returned from a scintillating victory. After how many years the medal, Maria? Yes, so Tokyo 2020, Paris 2024. These men in blue have actually created history because this is for the first time in 52 years that a consecutive year medal has been won by the Indian hockey team. So they are very, very special. 5 decades. 5 decades. So should we start with the captain, the skipper himself? हाँ जी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई थिंक बहुत अच्छा रहा. टू बी ऑनेस्ट, जो इस बार सारी टीम ने हॉकी खेल के दिखाई है, और आई थिंक वो हमारे लिए भी बहुत प्राउड की मूवमेंट है एंड पूरे देश के लिए, क्योंकि सारे देश ने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस बार.
और जो हमारा टारगेट था डेफिनेटली हम गोल्ड के लिए जा रहे थे वहाँ पे, और हमारी थ्रू आउट द जर्नी हमारा एक ही माइंडसेट था। बट अनफॉर्चुनेटली आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हॉकी हमने इतनी अच्छी खेली है, और हमने ऑस्ट्रेलिया की बात करते थे, हम क्वार्टर फाइनल की बात करें, एक बंदे कम से हम खेला और वो भी हमने मैच जीता। आई थिंक उससे बड़ी बात नहीं है हमारी टीम के लिए, और ये भी हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, और देश के लिए मेडल लेके आना बैक टू बैक हॉकी में बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि टीम आपकी काफ़ी यंग टीम है, इट्स अ वेरी यंग टीम टेकिंग शेप वाले स्टेज में भी हैं काफ़ी सारे लोग, तो आपको लग रहा है कि जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग अपने पे मान के चल रहे हैं कि हर रोल को, हर पोजीशन को हमको डिफेंड करना है और उस पोजीशन में एक्सेल करना है, बढ़िया करना है, उस पोजीशन में जहाँ पे भी हम हैं उस पोजीशन में अच्छा करना है, अच्छा साइन है टीम के लिए और टीम को आगे भी ले जा सकता है इससे? 100% सर, क्योंकि यंग टीम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यंग टीम के साथ साथ आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है और कॉन्फिडेंस है कि ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये बहुत सारा आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहता है। और ये एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं आप कि टीम के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, सब ने अभी बहुत लंबी जर्नी है अभी उनकी, और जैसे जैसे और मैच्योर होंगे और एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो वो टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली कई बार नीडलेस क्रिटिसिज्म हो जाता है टीम्स का, नहीं सर, स्पोर्ट का, लोगों का। पार्ट ऑफ द गेम है। अगर कोई भी प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है और वो कभी भी मन में ये नहीं लेके जाएगा कि यार मैं हार के आ जाऊंगा, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता है। और आई थिंक हर बार वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है और मेडल जीतने की कोशिश करता है। बट जैसे मैंने बताया कि बहुत अलग सिचुएशन होती हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, बट ये चीज़ आई थिंक जब मैं बोलना स्पेशली चाहूँगा कि आप हर समय प्लेयर को सपोर्ट करेंगे तो आई थिंक सभी ग्रो करेंगे। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बात इमेजरी की भी होती है। शाहरुख खान की स्टारर मूवी है तो 100 करोड़ की बुकिंग कोई बड़ी बात नहीं होती। उसी तरह से टीम गेम्स में ये जो टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कुछ हद तक हॉकी की अगर बात करें तो नीदरलैंड्स, बड़ा नाम है उन लोगों का। उनको देख करके, उनकी प्रिपरेशन को देख के, उनकी गेम्स को देख करके आपको क्या लगता है, कोई ऐसी आपको रियलाइजेशन होती है कि ये चीज़ें जो ऑब्वियसली आज के दिन में मॉडर्न स्पोर्ट में सिर्फ प्लेयर और उसकी स्पोर्ट्समैनशिप से काम चलता नहीं है, कोचिंग है, फिजियो है, फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग ट्रैक्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको देख करके आपको क्या लगता है कि हम उन सारे जो असिस्टिंग मटेरियल है उसमें कहाँ हम बेहतर कर सकते हैं? कुछ हमसे अच्छा अभी भी वो लोग कर रहे हैं क्या प्लेयर्स को सुविधा देने में? नहीं सर, अगर सुविधा की बात करें तो आई थिंक इंडिया बेस्ट कंट्री है कि जो आप चाहते हो आपको प्रोवाइड हो रहा है। बट यूरोपियंस हॉकी में सर ऐसा है कि आई थिंक वो जो आपस में मैचेस खेलते हैं वहाँ पे, वो टीम, उनका जो टूर्नामेंट होता है EHL, यूरोपियन हॉकी लीग, तो वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करना और वहाँ के जो क्लब्स हैं उनके साथ खेलना, आई थिंक वो प्लेयर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और नॉलेज बढ़ती है प्लेयरों की कि आप ये प्लेयर के साथ खेल रहे हो। बट अभी जैसे हॉकी इंडिया लीग का अनाउंसमेंट हुआ है सर, वो सबसे बड़ी बात है और प्लस पॉइंट है इंडियन हॉकी के लिए, अगर आप इंडियन हॉकी को और ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे हमने हॉकी इंडिया लीग में स्टार्ट किया है, वहाँ से जब टॉप के एथलीट के साथ आप खेल रहे हो, इंडिया के हो चाहे आउट ऑफ कंट्री के जितने भी बड़े प्लेयरों के साथ आप खेल रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक्सपोजर की बात है 100%। तो आई थिंक वो स्टेज बहुत ज़रूरी है कि जितना आप फॉरनर्स के साथ मैचेस खेलो, चाहे अब हॉकी इंडिया लीग में सभी प्लेयर्स आएंगे, आप उनके साथ खेलेंगे और बहुत सारे यंगस्टर्स ऊपर आएंगे और उनके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो कि वो उन सबके साथ रहेंगे, सबके साथ खेलेंगे, तो इससे आई थिंक वो सीखेंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई जाएगा। मुझे तो पता चला आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। मैडम मैं गाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं बोल रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। और बहुत मोटिवेटिंग रहता है जब कुछ माहौल थोड़ा तो गाने में संजीदा हो जाता है। हाँ जी, गाने में शर्माने की क्या बात? नहीं शर्मा नहीं रहा सर, मेरा वो देख सकते हो कि आवाज़ सही नहीं है, मैं सच में अच्छा सिंगर हूँ सर। अपने आपको आज रैप अच्छे कर लेता है। रैप अच्छे कर ले। सर मैं हॉकी से पहले मैंने सीखा हुआ है सारा कुछ सिंगिंग का। अच्छा, मेरा था पैशन। और यू आर ए ट्रेंड? मैं हारमोनियम तक सब किए हुआ सर। अच्छा। तो पर अनफॉर्चुनेटली जो डेस्टिनी है आपकी इधर है। फॉर्चुनेटली
पर बहुत अच्छा है सर, और बहुत अच्छा है। अब जब आप लोग इतने साल से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाते रहते हैं, क्या दूसरों का नज़रिया हिंदुस्तान की तरफ बदला है? जिस तरह से इंडियन हॉकी टीम को देखा जा रहा है, इंडियन कंटिंजेंट को देखा जा रहा है, सीरियसली आई थिंक एक स्पोर्टिंग स्पिरिट की जो बात होती हाँ, और एक स्पोर्टिंग नेशन की तरह हमारे को लोग वैसे से हमेशा से भले लोग तो मानते ही थे, ऐसी बात कभी थी नहीं हमारे बारे में, पर एज ए स्पोर्टिंग नेशन क्या देखा जा रहा है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा हमारे ने एक्चुअली। बिल्कुल ये आई थिंक किसी ना किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा सर इस बार, क्योंकि जब हम क्वार्टर फाइनल मैच जीते थे ना, तो आउट ऑफ हॉकी जितने भी कोई भी एथलीट गुजर रहा था पास में से, वो हमसे बात करके गया और बोला कि जो आपने किया वो अनबिलीवेबल है। तो वो बहुत खुशी की मोमेंट थी हमारे लिए। हॉकी वालों ने तो बिल्कुल, जो दूसरी टीमों वाले हमारे पास आ रहे थे, हमें बधाई दे रहे थे, और जो हॉकी नहीं भी खेलते थे उन्होंने भी हमसे आगे बात की, तो वो बहुत एक हमारे लिए अच्छी मोमेंट थी। टू द कैप्टन, अबाउट द विक्ट्री, अबाउट द एक्सपीरियंस, अबाउट इंडिपेंडेंस, आप क्या कहना? मैं जब भी बात करता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि हमारी हॉकी की जो हिस्ट्री है बहुत बड़ी है सर, और जितने मेडल्स हैं और जो एक दौर था हॉकी का, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम वो वापस लेके आएँ और ज़्यादा मेडल लेके आएँ, ये मेडल का कलर भी चेंज करें, जो कि लोग हैं हॉकी को फिर से उतना ही प्यार दें जितना वो पहले प्यार देते थे। एंड बिग थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर, एंड कोर्स हमारे जो साई के हैं, जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो रिक्वायरमेंट रहती है वो टाइम पे पूरी होती हैं, एंड स्पेशली उड़ीसा गवर्नमेंट हमारी Yes. जो हमें मतलब उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स दिखाई हैं, हम अच्छे मैचेस, अच्छे टूर्नामेंट करवाना इंडिया में सर। सो आई थिंक वो भी बहुत हमारे लिए बड़ी बात है, एंड ऑफ कोर्स हमारी हॉकी इंडिया से। तो क्योंकि ये पर्दे के पीछे वाला जो हार्डवर्क है ना, इनके लिए बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जीत कर बैठोगे तो आप इन सब चीज़ों की बातें नहीं करोगे तो आपका मायने नहीं रखता आपको, क्योंकि उनका भी इतना ही हार्डवर्क है। तो बिल्कुल हम बहुत खुश हैं, और मैं पूरे देश से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हॉकी को प्यार करें। आपने बहुत प्यार दिखाया है, और बहुत टाइम के बाद इतना प्यार हमें देखने को मिला है, और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी किसी बड़ी टूर्नामेंट में जाएं, इंडिया का झंडा सेंटर में रखें, ऊपर लेके जाएं, नेशनल एंथम गाएं और मेडल लेके। We want to talk to you first about that winning moment. We saw you got very emotional. Tell us how you were feeling at the time. Quite exciting and emotional. I did not expect to win that game, and yeah, when it happened, I got my emotions to full. Right. Well, you said you didn't expect to win the game. So how did you manage the stress? Your opponent won the first and 12th round. You won 3rd, 11th, 14th. Tell us which round was the most difficult. Yeah, I did not expect to win that final game because the position was heading towards it, and I thought I'll just keep pushing. I'll just keep trying to win, but like objectively, it should end in a draw. But when he made a mistake, it was quite a nice moment. And the most difficult game for me was to handle. I think after the losses after game 1 and game 12. But all those three nice wins were quite nice. Now, chess is a mind game. For the youth who are watching right now, just tell us how important it is to maintain calm and be in control of the game. Yeah, it's not an easy job to maintain your composure throughout the games and the tournament. And yeah, I just try my best. I do some yoga and meditation, which really helps me a lot. And I think with some experience and with some mental toughness, I'm able to handle these emotions quite well. It's not easy, but with some experiences, some good habits, I think it's very much possible. All right, now, so yoga and meditation. Now, during the game, we saw you were also closing your eyes, trying to maintain calm. Tell us a bit about your mind functions that time. How do you think it pressurizes your opponent? Yeah, when my opponent was taking long things in the opening, I tried to
closed my eyes because I knew what my reply would be to his moves, and I just tried to like focus on my breathing and just stay in the moment and not put too much energy in those moments because I'll be needing those in the later parts of the game. So I, yeah, there were some simple things that I tried to do, and there are always each player has their own way of dealing with different kinds of situations, and yeah, it's part of the mental side of the game is for sure very important part of the game. All right, D. Gukesh, well, thank you so much for speaking to us here at NDTV, and may you continue to be victorious and also inspire the youth. Thank you.